السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 42 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ سماعون سننے والے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے، کثرت، یعنی جو میننگ اس میں ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سما کہتے ہیں بہت سننے والے کو، سماعون للکذب جھوٹ کو بہت سننے والے۔ یہ ہم نے آپ کو پچھلی والی جو کلاس تھی اس میں بھی اس طرح کی ایک آیت تھی، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جھوٹ کو بہت سننے والے یعنی جھوٹ کے شوقین، جھوٹ کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں سننے میں، ایسے تو ایسے لوگ ہیں، یا پھر یہ کہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ باتیں سنتے رہتے ہیں دوسرے کی کچھ نہ کچھ، وہ جیسے کہ چلتا ہے ہمارے یہاں پہ آج کل، آپ دیکھتے بھی ہیں جو میڈیا وغیرہ اور پھر موبائل وغیرہ، تو لوگ جھوٹی جھوٹی چیزیں سنیں گے، پھر اس کو الٹا پلٹا کر کے ادھر ادھر پھیلا دیں گے۔ تو یہ مطلب بھی ہے اس کا، جھوٹ بولنے کے لیے بہت زیادہ سنتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں۔ اکالون للسحت بہت کھانے والے ہیں، سحت کہتے ہیں حرام کو، حرام غلط طریقے سے حاصل مال کو، اکالون للسحت حرام کا بہت کھانے والے ہیں۔ تو سنتے ہی ہیں، اس وجہ سے دیکھیں اس میں یہ والا سینس بھی آتا ہے پھر اس آیت میں کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں اور اسی کے پیسے بھی لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ پھیلانے کے پیسے لیتے ہیں، ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، وہ جھوٹ پھیلانے کے ہی پیسے لیتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جھوٹ پھیلائیں اور اس کے پیسے لیں۔ تو اس میں پھر یہ والا میننگ ہوگا، یعنی کھانے والے ہیں حرام کے، تو وہ حرام روزی اسی طرح ہے، حرام مال اسی طرح ہے کہ جھوٹ پھیلانے کے لیے پیسہ لے رہے ہیں، یہ جھوٹ بات بتانے کے لیے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ فَإِن پھر اگر جاؤکا وہ آئے آپ کے پاس، فَاحْكُم تو فیصلہ کرو، حکم دو، بینہم ان کے درمیان، حکم یحکمان فیصلہ کرنا، فحکم بینہم تو فیصلہ کرو ان کے درمیان، او یا اعرض عنہم، اعرض یعرض اعراض کرنا، اعرض یعرض اعراض کرنا، اگنور کرنا، او اعرض عنہم یا اگنور کر دو۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی بات ہر جگہ بالکل خاص نہیں ہوتی ہے، انہی کے لیے ہی، وہ سب کے لیے سبق ہوتی ہے۔ تو یہودی لوگ یہ کرتے تھے عام طور سے کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے باتیں سنتے تھے آ کے، اور پھر لوگوں سے رشوت لیتے تھے بات کو بدلنے کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو آگے بھی آئے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کے ذریعے، میری آیتوں کے ذریعے تھوڑی قیمت خرید رہے ہیں، تھوڑی قیمت لے رہے ہیں۔ جی مہر۔ سر ہم فاحکم کا یہ بھی کر سکتے ہیں کیا ترجمہ؟ تو حکم کرو۔ ہاں حکم، لیکن یہاں پہ حکم کرنے کا مطلب یہی ہے فیصلہ کرنا، حکم بھی ہوتا ہے اس کا معنی حکم دینا، بٹ یہاں پر فیصلہ کرنا اس کا میننگ ہے کہ وہ آئے اور ان کو حکم کرو، یعنی فیصلہ کرو ان کے درمیان، ان کے بیچ حکم کرو، فیصلہ کرو۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَإِن اور اگر تُعْرِضْ عَنْهُمْ تم ان سے اعراض کرو، فَلَن تو ہرگز نہیں، یضروک ضر یضر معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا،
यजुर्रु वो नुकसान पहुंचा पाएंगे का तुमको, शैया थोड़ा सा भी, वो तुमको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। व इन हकमता, और अगर तुम फैसला करने लगो, यानी अगर दिल कर रहा है, जैसे कि पीछे ऑप्शन दिया था कि करो या मत करो, चॉइस है आपकी, लेकिन अगर करने लगो, देखिए फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त, तो फैसला करो उनके दरमियान इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, अल मुक़सितीन, इंसाफ करने वाले को। क़िस्त, काफ सीन पा, इंसाफ को कहते हैं। अगर तुम उनको टाल दोगे तो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और अगर तुम फैसला करो, यानी अगर इरादा हो करने लगो, तो उनके दरमियान इंसाफ के मुताबिक फैसला करो। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सर एराज का मीनिंग इग्नोर है। जी, एराज करना, इग्नोर करना, टाल देना। जी। मुंह फेरने को बोलते हैं असल में एराज। जी सर। वकैफ युहक्किमूनक वइंदहुमुत-तौरातु फीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौना मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन। वकैफा, और कैसे, युहक्किमूना, वो फैसल बनाते हैं, फैसल, फैसल कहते हैं फैसला करने वाले को, वो फैसल बनाते हैं, हाकिम बनाते हैं का आपको। वो कैसे आपको हाकिम बनाते हैं, वाइंदहुम, और उनके पास अत्तौरातु, तौरात है। तो देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है समझने की। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब उनके पास तौरात है, जब उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह के कानून और फैसले मौजूद हैं, तो वो तुम्हें आके कैसे फिर हाकिम बनाते हैं। तो मतलब इसका मतलब यही है कि वो उस पर अमल करना नहीं चाह रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आपके यहाँ कोई आसान तरीका मिल जाए, आपके यहाँ कुछ आसानी मिल जाए, कि हो सकता है इसकी सजा आपके यहाँ पे ना हो, कुछ ऐसी। तो इसका मतलब यही है ना कि क्यों आ रहे हैं वो, जब तुम्हारे पास तौरात है, अल्लाह की किताब, और तुम अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जब मौजूद है अल्लाह की किताब, तो तुम क्यों उनके पास आ रहे हो फैसला कराने के लिए। तो ये शुरू के वक्त की बात है, जब ये कहा गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उनके दरमियान फैसला करें या ना करें, तो आपकी मर्जी है। वकैफ युहक्किमूनका, और वो कैसे फैसल बनाते हैं आपको, वइंदहुम, और तुम्हारे और उनके पास अत्तौरात, तौरात है, फीहा, उसमें यानी तौरात में, हुक्मुल्लाही, अल्लाह का हुक्म मौजूद है। सुम्मा, फिर, यतवल्लौना, वो रूगर्दानी कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, तवल्ला फेरना, मिन बादी जालिक, इसके बाद, जब उनके पास मौजूद है उसके बाद मुंह फेर रहे हैं और आ रहे हैं आपके पास कि आपके यहाँ कोई हल्का सा हुक्म हो, या कोई ना हो, इसकी सजाई ना हो, इस गर्ज से, यानी शैतानी चालें हैं बस दिमाग में, ये कि हमें बस अमल ना करना पड़े। इस तरह होता है ना बहुत से लोगों के पास। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और नहीं है ये लोग बिलमुमिनीन, ईमान वाले, ये ईमान वाले बिल्कुल है ही नहीं, इनको यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है इनको। और वो कैसे तुमको हकम बनाते हैं, हालांकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, और फिर वो उससे मुंह मोड़ रहे हैं, और ये लोग हरगिज ईमान वाले नहीं हैं। इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। इन्ना, बेशक, हमने नाजिल की थी, अत-तौरात, तौरात, बेशक हमने नाजिल की थी तौरात, फीहा, उसमें था, यह थी, हुदन, हिदायत, व नूर, और रोशनी, उसमें हिदायत भी थी और रोशनी भी थी आगे चलने के लिए। हिदायत राह को कहते हैं, सीधी राह, और सीधी राह में आगे चलते जाने के लिए रोशनी भी थी। बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी है। यहकुमु बिहा अन्नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारु बिमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा।
यहकुम फैसला करते हैं, बिहा उसके जरिए, तौरात के जरिए फैसला करते हैं, उसके जरिए अन्नबीयून नबी, अल्लजीना वो, असलमू जो इस्लाम ले आए, जो मुस्लिम हैं, यानी जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, वो किन के लिए, लिल्लजीना उन लोगों के लिए, हादू जो यहूदी बने, जो यहूदी बन गए, वो उन लोगों के लिए ये फैसला करते हैं नबी जो मुस्लिम है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बताया गया है ये बेसिकली इसलिए बताया गया है कि नबी सारे मुस्लिम हैं, अलग से नाम वगैरह नहीं, सब मुस्लिम मुस्लिम थे वो सब। अल्लदीन असलमू जो मुस्लिम थे, जिन्होंने इस्लाम लिया ले आए थे, जो जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर दिया था। व रब्बानीयूना और अल्लाह वाले लोग जो हैं वो भी फैसला करते हैं, किसके जरिए, तौरात के जरिए। मेहर इधर ध्यान दीजिए। वल अहबारू, हा बारा, हब्र इसको कहते हैं बड़े आलिम को, हिब्रून वैसे रोशनाई को भी कहते हैं, और हब्बरा चीज को निखारने को भी कहते हैं। तो दोनों मीनिंग में बड़े आलिम को अखबार कहेंगे, हबरून जमा अखबार। रोशनी से अगर लेंगे तो तब भी रोशनाई जो होती है, क्योंकि आलिम वगैरह जो होते हैं, जो वो उनको पढ़ाई लिखाई से राब्ता रहता है, रोशनाई से, इंक वगैरह से ताल्लुक होता है उनका, या ये कि आलिम जानने वाला चीजों को अच्छा करता है, तो हब्बरा अच्छा करने से भी इसकी मीनिंग है। तो मतलब इसका बुनियादी है बड़ा आलिम, हबरुन जमा अखबार, बड़ा आलिम। रब्बानी कहते हैं, रब से बना है, रब्बानी जो अल्लाह वाला हो। तो रब्बानी और बड़े आलिम भी फैसला करते थे, किसके जरिए, तौरात के जरिए। किन लोगों के लिए, यहूदियों के लिए। बीमा क्यों, इस वजह से, इस्तुहफिजू, इस्तहफजा से उस्तुहफिजा, उस्तुहफिजू, बिमस्तुहफिजू क्योंकि वो निगरां बनाए गए थे, मिन किताबिल्लाह, किताबुल्लाह से, किताबुल्लाह के वो निगरां बनाए गए थे, जिम्मेदार बनाए गए थे, इसलिए वो लोग फैसला करते थे। वकानू और वो थे अलैहि उस पर, किताबुल्लाह पर, किताबुल्लाह पर थे वो शुहदा गवाह। उसके सर मुताबिक इस्तुफिजू मतलब निगरानी करना। इस्तहफजा माने होता है निगरां बनाना, मुहाफिज बनाना, तो ये पैसिव है उस्तहफिजा। तो जो निगरां बनाए गए थे, यानी वो रब्बानी और अखबार वो क्यों फैसला करते थे, क्योंकि वो निगरां बनाए गए थे। और निगरां क्या करता है, वो हिफाजत करता है, और हिफाजत ये भी है कि लोग उसका गलत रेफरेंस ना देने लगे, लोग गलत तरीके से बयान न करने लगे, ये भी एक निगरानी ही है। मान लीजिए किताब में ये नहीं लिख रहा, फॉर एग्जाम्पल जैसे तौरात में ये बात नहीं थी कि तुम लोग ये ना करो, और वो कह रहे हैं कि तौरात में लिखा हुआ है, तो वो लोग उसके मुताबिक फैसला करते थे, और ये ख्याल रखते थे कि लोग इसका गलत इस्तेमाल और गलत रेफरेंस ना दें, ये भी हिफाजत होती है। उसके मुताबिक खुदा के फरमाबरदार अंबिया यहूदी लोगों का फैसला करते थे, और उनके दुर्वेश और उलामा भी। दुर्वेश यानी जो अल्लाह वाले होते हैं, दुर्वेश जो सब कुछ छोड़ छाड़ के खुदा के लिए लग जाते हैं, इसलिए कि वो खुदा की किताब पर निगहबान ठहराए गए थे, मुहाफिज बनाए गए थे, और वो उसके गवाह थे। फला तख्शौन्नास वख्शौनी वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। फला तख्शौन्नास, तो ना डरो, खशिया यख्शा माने होता है डरना, ला तख्शा मत डरो, अन्नासा लोगों से, ला तख्शौन्नास लोगों से मत डरो। तो देखिए ये बात बताई जा रही, पहले देखिए, पहले इसका कुरान का तरीका ये है, अल्लाह का तरीका ये है, और ये एक फितरी तरीका है। पहले उसको बताया जाता है कि देखो वो लोग जो अल्लाह वाले रहे हैं हमेशा से, और नबी वो किताब के मुताबिक ही फैसला करते थे। तो तुम लोगों से ना डरो कि तुम किताब के मुताबिक अगर फैसला करोगे तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, या ये कि तुम्हें बुरा भला कहेंगे।
اگر تم ان کے خلاف اگر تم فیصلہ کر دو گے، یعنی کتاب کے مطابق، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کے مطابق اگر فیصلہ کرو گے تو ظاہر ہے وہ مجرم کے خلاف ہی پڑے گا. اگر آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو گے تو ظاہر ہے جس نے جرم کیا ہے اس کو تو سزا ملے گی. پھر تو تم ایسے لوگوں سے نہ ڈرو کہ مجرم کو سزا ملنے دے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. پیچھے بات کہی گئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. اگر کچھ ہوا بھی تو پیچھے بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ بس تمہیں تھوڑا بہت ستانا ان کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے، اس لیے لوگوں سے نہ ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو، میری کتاب کے حساب سے فیصلہ کرو، ان کے خواہشات اور ان کی چاہت کے مطابق نہیں. ولا تشترو، اور یہی بات آگے کہی جا رہی ہے، دیکھیے یہی جو الفاظ ہیں، ولا تشترو، اور نہ خریدو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، میری نشانیوں کے بدلے، یعنی میری نشانیوں کے بدلے، ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت. مطلب یہ کہ پیسے لے کر میری آیات کو الٹ پلٹ کے وہاں پر بیان کر دو کہ یہاں کتاب اللہ میں ہاں ایسے ہی لکھا ہے، ٹھیک ہے ہم پیسے لے لیتے ہیں اور تمہارے لیے یہ والا فیصلہ کر دیں گے. اس طرح ایسا کرتے تھے لوگ. بس تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیاتوں کو متاع حقیر کے عوض، متاع حقیر کم تر سامان کے عوض نہ بیچو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بس دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت سوچنے کی آیت ہے، غور کیجئے گا بعد میں خود بھی، اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو نہیں فیصلہ کرتا ہے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لم نہیں، حکم یحکم فیصلہ کرنا، ومن اور جو لم یحکم فیصلہ نہیں کرتا، یعنی جس نے فیصلہ نہیں کیا، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق جس نے فیصلہ نہیں کیا، فاولئک، تو وہ لوگ، ہم وہی لوگ، الکافرون، انکار کرنے والے ہیں، وہی لوگ منکر ہیں. اور جو کوئی اس کے موافق حکم نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ منکر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا، علیہم، ان پر. لکھنے کا میں نے پہلے ہی میننگ بتایا تھا آپ کو، لکھنا مطلب ضروری قرار دینا. ہم نے ضروری قرار دیا علیہم، ان پر، فیہا، اس میں مطلب التورات، تورات میں ہم نے ضروری قرار دیا ان پر کیا، انا، بے شک، النفس، نفس، بالنفسی، نفس کے بدلے، یعنی جان کے بدلے، اگر کوئی کسی کو مارے گا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ ہم نے تورات میں یہ فیصلہ لکھ دیا تھا ان کے لیے کہ جس نے کسی کو مارا بدلے میں قتل کیا جائے گا. والعین بالعین، اور اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ بھی بدلے میں پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، اور کسی نے ناک توڑ دیا اگر کسی کی تو اس کی ناک توڑی جائے گی. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا تو بدلے میں کان. والسن بالسن، اور اگر دانت توڑ دیا تو بدلے میں دانت توڑا جائے گا. والجروح، اور اگر زخم دیا ہے، قصاص، تو اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کے برابر. قصاص اصل میں کہتے ہیں قصہ، مانے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے، پیچھے چلنا. تو جروح جو ہوں گے ان کے پیچھے چلا جائے گا، یعنی جیسا زخم ویسا ہی بدلہ. اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر، جیسا زخم ویسا بدلہ. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فمن، پھر جو، تصدقہ مانے ہوتا ہے صدقہ کرنا، معاف کر دینا اپنے دل سے، سچے دل سے. فمن تصدق به، پھر جو اپنے سچے دل سے اس کو معاف کر دے.
दिल में आ रहा है चलो हो गया नुकसान मेरा तो कोई बात नहीं, माफ कर दे अगर कोई, फहुआ तो वो, यानी ये माफ करना, कफ्फारतुन कफ्फारा होगा। कफ्फारा हमने पहले ही बताया था। मेहर अपना कैमरा फिक्स कीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा नीचे करो। फहुआ तो ये माफ करना, कफ्फारतुन कफ्फारा है लहू उसके लिए। कफ्फारा यानी चीजों को खत्म कर देना, यानी जो और चीजें होंगी और गुनाह उसके हुए होंगे उसके बदले में वो कफ्फारा हो सकता है माफ करने वाले का अल्लाह की तरफ से। बहुत सारी पीछे भी ये बात कई मर्तबा कई तरह के सेंटेंस में आई है कि अल्लाह ताला उन लोगों का जो अच्छाई करते हैं, बहुत से उनके जो बुरे अमाल हैं जो गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ कर देता है, वो मिटा देता है। कफ्फारा तो काफारा मिटा देना, छुपा देना, मिटा देना। तो यहाँ पर ये उसको है जो सदका करे, जो माफ कर दे, उसके लिए कफ्फारा होगा उसके बाद अमाल का जो उससे गलती से हो गए, उसके लिए कफ्फारा होगा। अब यहाँ पर हु उस बंदे के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पर उस बंदे के लिए थोड़ा सा इस तरह से लगता है कि क्योंकि वो अगर उसके दिल में उसके लिए एहसास नहीं है अपनी गलती का तो उसके लिए कफ्फारा नहीं हो सकता। फिर कफ्फारा क्या है? तो ये ज्यादा बेहतर है कि जिसने सदका किया यानी जिसने माफ किया उसके लिए ये माफ कर देना कफ्फारा होगा, यानी उसका ये इतना बड़ा अमल है इसकी वजह से दूसरे अमाल उसके थोड़े बहुत अगर गलत भी हैं तो उन पर पर्दा डाल दिया जाएगा। वमन लम यहकुम और जो नहीं फैसला करता, यानी जिसने फैसला नहीं किया, बिमा अंज़ल अल्लाह अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुताबिक, यानी कि अल्लाह की किताब के मुताबिक, फउलाइका तो वे लोग हम वही अज़्ज़ालिमून जालिम हैं। तो बहुत ही ज्यादा गौर करने की आयत है ये वाली भी पीछे वाली भी। फिर जिसने उसको माफ कर दिया तो वो उसके लिए कफ्फारा है, और जो शख्स उसके लिए उसके मुआफिक फैसला करे, फैसला ना करे जो अल्लाह ने उतारा, तो वही लोग जालिम हैं। सर अगर कोई इंसान दिल से माफ नहीं किया और कुछ दूसरे दूसरे आवाज से हरकत थोड़ा सा, करके, थोड़ा आवाज से। अगर कोई आदमी है ना दिल से माफ नहीं किया और कुछ दूसरे चीजों से कुछ जैसा कि आवाज पैसे नहीं, लेके मैं माफ सुन नहीं नहीं, पा रहा हूँ सही से, थोड़ा जोर से बोलिए। सर अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को माफ कर दिया मतलब दिल से माफ नहीं किया, माफ कर माफ दे, किया तो वो कफार, जी, माफ कर दे वो उसके बाद क्या इंसान बोले? कफार, अगर वो इंसान दिल से माफ नहीं किया पर पैसे लेके उससे वो इंसान को छोड़ दिया जो इंसान गलती करा था, तो वो इंसान जो माफ कर दिया वो कफारा नहीं होता है ना उसके गुनाह। नहीं फिर कफारा क्यों होगा? अगर उसने उसके बदले पैसे ले लिए यानी फिर बदला ही हो गया, फिर तो बात पूरी हो गई। ये तो एहसान जो वो कर रहा है, वो जो एहसान अगर कर रहा है तो वो एहसान इतना बड़ा है। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी और आप उस ज्यादती को सह के माफ कर दे रहे हैं, तो बहुत आला दर्जे की बात होती है। हर कोई नहीं कर पाता है, और ना इसको कहा जा रहा है कि ऐसे करो, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ऐसे करो ही, मर्जी है आपकी। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत आला दर्जे की बात है। तो आला दर्जे का काम जो होता है तो जाहिर है कि उससे दूसरी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। खुश अगर आप किसी के सामने कोई ऐसा काम कर देते हैं जो बहुत नॉर्मल नहीं है, तो जाहिर है उससे खुशी होती है सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल टीचर, आप एज ए स्टूडेंट हैं तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपने कोई ऐसा काम कर दिया या कोई ऐसा सवाल जो टीचर के जहन में था कि कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, वो सवाल उन्होंने दिया और आपने कर दिया वो सवाल, तो वो कितना खुश होगा। आपने कुछ उस वक्त करा भी होगा ना तो उसको भी इग्नोर कर देगा, चलो छोड़ो इसने आज बहुत बड़ा काम किया है, मैं तो सोच रहा था कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ये जी सर। नॉर्मल है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि अगर उसने ये काम किया है तो अल्लाह ताला उसके बहुत से गुनाहों को जो उसने किए हैं माफ कर देते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, पीछे भी कई और लफ्जों में दूसरे दूसरे लफ्जों में ये बात आई है कि अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों को कि छोटे छोटे जो गलतियां हो जाती हैं उनको माफ कर देते हैं। ये पहले भी आ चुका है।
वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौराह व आतैनाहुल इंजील फीहि हुदन व नूर। वक़फ़ैना, काफ वा कफ़ून माने होता है पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं, तो कफ़ा पीछे लगाने को भी बोलते हैं। कफ़ा पीछे चलना, कफ़ा पीछे चलाना। वक़फ़ैना, और हमने पीछे चलाया, अला आसारिहिम, उनके आसार, उनके निशान के, यानी उनके बाद हमने पीछे भेजा। बेईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम को हमने उनके पीछे भेजा, उनके बाद हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरा, जो उनके पास तौरात थी उसकी वो तस्दीक करने वाला है। ईसा इब्ने मरियम वो तस्दीक करने वाला है उसकी, जो उनके पास तौरात है। व आतैनाहु, और हमने दी उसको अल इंजील, इंजील भी दी हमने उसको। देखिए इंजील भी दी, लेकिन वो तस्दीक करने वाले थे किसकी? तौरात की। तौरात की तस्दीक करने के लिए आए थे वो, ये नहीं कि बस पीछे वाला सब खत्म, ये नहीं, बल्कि वो तस्दीक करने वाले थे कि ये अहकाम अल्लाह की तरफ से हैं तौरात में, और बल्कि खुद उन्होंने उनको फॉलो भी किया। फीही हुदन, और उसमें हिदायत है, वो नूर है। और हमने उनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा तस्दीक करते हुए अपने से कब्ल की किताब तौरात की, और हमने उसको इंजील दी जिसमें हिदायत और नूर है। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। व मुसद्दिक़न, और वो किताब भी तस्दीक करने वाली है, लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात, तौरात की जो उसके पास है, उस तौरात किताब की वो किताब इंजील भी तस्दीक करने वाली है। वह हुदन, और वो हिदायत है, वह मौइज़तन, और नसीहत है, लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए। और वो तस्दीक करने वाली थी अपने से अगली किताब तौरात की, और हिदायत और नसीहत डर वालों के लिए, जो डरने वाले थे उनके लिए हिदायत भी और नसीहत भी। अब देखिए नसीहत और डर और हिदायत ये बार बार आता है, उन लोगों के लिए ही होती है जो अक्ल लगाते हैं, जो डरते हैं, जो उन्हीं के लिए हिदायत बनती है चीजें। और जो आदमी कुछ सोचे ही नहीं, गलत काम के ही लिए सोचे, तो उसके लिए नसीहत नहीं बनती है। जैसे पीछे आया था, उन लोगों का काम ही ये हो गया था कि जो हमारे मुताबिक होगा, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको मानेंगे, और जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा उसको नहीं मानेंगे। तो उनके लिए डर और नसीहत नहीं होता है फिर। वल्यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। वल्यहकुम, और चाहिए कि फैसला करें, अहलुल इंजील, इंजील वाले फैसला करें, बिमा, उसके मुताबिक, जो अनजल अल्लाह, अल्लाह ने नाजिल किया, फी, उसमें, जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है उसके मुताबिक फैसला करें। वमन लम यहकुम, और जो फैसला नहीं करता, जिसने फैसला नहीं किया, बिमा अनजल अल्लाह, अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुताबिक, यानी किताब के मुताबिक, फउलाइका, तो वही लोग हुमुल फासिकून, हद को तजावुज करने वाले हैं, हद से निकलने वाले हैं। और चाहिए कि इंजील वाले इसके मुवाफिक फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो कोई उसके मुवाफिक फैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा, तो वही लोग नाफरमान हैं। चलिए आगे की आयत बड़ी है तो टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक याद कर लीजिएगा, और इसको बर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा इसकी।